Hey my dear lovely students, a very good morning to all of you. Once again I welcome you all in the today's video session. In today's class we will be studying few more questions on ratio. That is more important for you from your examination point of view and to gain maximum concepts from this chapter. As in the last class, we have studied various questions regarding ratio. In today's class also, we will study questions on ratio with all different types. That is how to find A ratio C, that is first quantity and the last quantity, and moreover some specific type of questions on this particular chapter. So without wasting any more time, let's straight start our today's video. Thank you. So let's start on with our today's topic, that is questions on ratio. In the last class, that is yesterday, we discussed questions on ratio, and today also we will discuss questions on ratio that will be very important from examination point of view, and you all need to gain the maximum concept from this particular chapter. So questions on ratio. The first question to start on with today is A ratio B is equal to 7 ratio 5. B ratio C is equal to 9 ratio 14. Find A ratio C. The question is very simple. The question is A ratio B is given 7 ratio 5. B ratio C is given 9 ratio 14. You have to find A ratio C. So what does this basically means? You have to find A ratio C. That means we don't need this particular quantity B. Whenever we have to find A ratio C, that is the first quantity and the last quantity, what we do, we just simply multiply both the ratios. Let's start on with solution. A ratio B equal to 7 ratio 5. A ratio B can be written as A by B is equal to 7 by 5. B ratio C can be written as B by C equals 9 by 14. Now we have to find A ratio C. How we will get A ratio C? When we cross multiply both the term, that is A by B multiplied by B by C. तो B से B कट जाएगा. If we multiply both the terms, that is A by B multiplied by B by C, B will cancel B. What we can write? A by B का वैल्यू कितना था? 7 by 5 multiplied by B by C का वैल्यू कितना था? 9 by 14. B से B कट गया. What we are left with? A by C. What do we get? 7 2 जा 14. That is it. 9 1 जा 9 and 5 2 जा 10. A by C का वैल्यू कितना आ गया? 9 by 10. तो A by C को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A रेशियो C इज इक्वल टू 9 by 10 और 9 रेशियो 10. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. A रेशियो B का वैल्यू था 7 रेशियो 5. B रेशियो C का वैल्यू है 9 रेशियो 14. आपको फाइंड करना है A रेशियो C. तो A रेशियो C निकालने के लिए whenever we have to find out the first quantity and the last quantity, we just multiply both the ratios. That is A by B will be multiplied to B by C. Whenever we multiply to the ratios, what will happen? The same quantity will eliminate each other. That is B will cancel out B and we are left with A upon C is equal to 7 2 ja 14, 9 by 5 2 ja 10. A by C is equal to A ratio C and 9 by 10 is equal to 9 ratio 10. So what is the value of A ratio C? A ratio C is equal to 9 ratio 10. I hope it is clear to everyone. Let's take one more question of the same type. Question number 2. A ratio B is equal to 3 ratio 5. B ratio C is equal to 6 ratio 9. Find A ratio C. These questions are very important from your examination point of view and also from competition point of view.
whenever in future you decide to go for government exams, this type of questions are very important for that particular examination. So if you pay attention from this particular class, definitely you will succeed in your all the upcoming examinations. So let's see this particular question. Very easy. I hope now everyone can solve it. A ratio B is 3:5 and B ratio C is 6:9. We have to find A ratio C. What we will do? We will just multiply each other. A ratio B can be written as A by B is equal to 3/5. B ratio C can be written as B by C is equal to 6/9. Then we will just cross multiply. That is A by B multiplied by B by C is equal to 3/5 multiplied by 6/9. B will cancel B. What do we get? A by C is equal to 3 3s are 9 and nothing. 3 2s are 6. What do we get? 2/5. So A by C will be written as A ratio C is equal to 2/5 can be written as 2/5. So what is the value of A ratio C? 2/5. I hope it is clear. One thing which is to note down is that A ratio C is not equal to C ratio A. बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं कि ये दोनों को आपस में इक्वल लिख देते हैं. A रेशियो C वो कभी भी C रेशियो A के इक्वल नहीं है. अगर क्वेश्चन में A रेशियो C पूछ रहा है तो दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग. अगर क्वेश्चन में एंड C रेशियो A बोल दे फाइंड आउट कर देने के लिए तो यही तरीका करेंगे. नथिंग विल बी चेंज्ड. A रेशियो C का वैल्यू था 2:5 तो बस यहाँ पर कर देंगे C बाई A का वैल्यू कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल 5/2. तो C रेशियो A कितना हो जाएगा? 5/2. तो A रेशियो C और C रेशियो A में दोनों में डिफरेंस है. ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं. इसीलिए A रेशियो C इज नॉट इक्वल टू C रेशियो A. A रेशियो C का वैल्यू कितना था? 2:5 और C रेशियो A का वैल्यू कितना था? 5/2. 2:5 को लिख सकते हैं 2/5 और 5/2 को लिख सकते हैं 5/2. अब बताइए क्या 2/5 और 5/2 आपस में इक्वल है? नेवर. इसीलिए A रेशियो C इज नॉट इक्वल टू C रेशियो A. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप. Question number 3. A ratio B is equal to 5/8. B ratio C is equal to 16/25. Find A ratio C. Now you all can solve it. Very easy. Simply we will just multiply. We will write A by B is equal to 5/8. B by C is equal to 16/25. We will multiply, that is A by B multiplied by B by C. A by B का वैल्यू कितना है? 5/8 multiplied by B by C is equal to 16/25. B will cancel B. What do we get? A by C is equal to 5 5s are 25 and 8 2s are 16. What do we get? 2/5. तो क्या लिख सकते हैं? A रेशियो C इज इक्वल टू 2/5. आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. तो whenever we multiply the first ratio with the second ratio, what do we get? The first quantity and the last quantity. Or we can say to find the first quantity and the last quantity, we simply multiply, cross multiply both the ratios. Let's move on to other questions of the same type but of different approach. Question number 4. A ratio B is equal to 3/5. B ratio C is equal to 10/13. Find
A ratio B ratio C. This is the question. The question is A ratio B is 3 ratio 5, B ratio C is 10 ratio 13. You have to find A ratio B ratio C. So in the first questions we had to find only the first quantity, that is A, and the last quantity, that is C. But in this particular question we have to find all the three quantities, that is A, B and C. So how we will solve? Very easy. First of all, understand it. The question is A ratio B is 3 ratio 5, B ratio C is 10 ratio 13. आप हमको बताइए A रेशियो B में B का वैल्यू कितना है 5, B रेशियो C में B का वैल्यू कितना है 10। जब दोनों रेशियो में क्वांटिटी सेम है, यहां भी B और यहां भी B, तो दोनों का वैल्यू तो सेम होना चाहिए। फर्स्ट रेशियो में भी B है, यहां पर B का वैल्यू 5 है, सेकेंड रेशियो में भी B है, यहां पर B का वैल्यू 10 है। तो हाउ कैन बोथ द क्वांटिटीज बी ऑफ डिफरेंट वैल्यू? बोथ द क्वांटिटी मस्ट बी ऑफ सेम वैल्यू। व्हाई सेम? बिकॉज हियर ऑल्सो B एंड हियर ऑल्सो B. हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस? इन एनी क्वांटिटी, if there is a variable x, y, z or anything, its quantity does not change. Its quantity will be same throughout. So A ratio B is equal to 3 ratio 5, B ratio C is equal to 10 ratio 30. Find A ratio B ratio C. What we will do? Simply we will make both the values of B equal. B का वैल्यू यहां पे 5 है और B का वैल्यू यहां पर 10 है। तो सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे कि वी विल मेक बोथ द वैल्यूज ऑफ B इक्वल। यहां पर B का वैल्यू 5 और यहां पर B का वैल्यू कितना है 10। तो वी विल मेक द वैल्यूज ऑफ बोथ द B इक्वल, दैट इज A रेशियो B इज इक्वल टू 3 रेशियो 5 एंड B रेशियो C इज इक्वल टू 10 रेशियो 13। तो B का वैल्यू 5 है और यहां पर B का वैल्यू 10 है। 10 को 5 बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड नहीं करेंगे रेशियो में, सिंपली वी विल मल्टीप्लाई। तो इसको छोड़ देते हैं, 5 को 10 बना सकते हैं। 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो वी मल्टीप्लाई दिस होल रेशियो विथ 2। व्हाट डू वी गेट? A रेशियो B इक्वल टू 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। B रेशियो C इज इक्वल टू 10 रेशियो 13। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं तो 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, वी विल गेट द सेम रिजल्ट। ध्यान से समझिएगा व्हाट वी हैव डन। वी आर ट्राइंग टू मेक बोथ द वैल्यूज ऑफ B इन डिफरेंट रेशियोज इक्वल। यहां पर B का वैल्यू 5 था, यहां पर B का वैल्यू 10 था, तो 5 को कितना बना सकते हैं 10। तो इसके लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 एंड 10 1 जा 10, 13 1 जा 13। तो अब आप क्या देख सकते हैं कि A का वैल्यू 6, B का वैल्यू 10, B का वैल्यू 10 और C का वैल्यू कितना 13। तो दोनों जगह हमको B का वैल्यू सेम मिल गया। सो व्हाट इज आवर आंसर? A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 6। A का वैल्यू कितना 6, नो चेंजेस। B का वैल्यू कितना, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, जो मन है वो लीजिए। तो B का वैल्यू कितना हो गया 10। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C का वैल्यू कितना है 13। 6 रेशियो 10 रेशियो 13। I hope it is clear to everyone. This is the most important question from examination point of view. Let's take one more example of the same type. A ratio B is equal to 5 ratio 6. B ratio C is equal to 4 ratio 7. Find A ratio B ratio C. This is the question. Very easy. Once again, what we will do? B का वैल्यू कितना है? A और C को देखना ही नहीं है, because they both are 1. We have to look at B. यहाँ भी B का वैल्यू 6 और यहाँ पर B का वैल्यू कितना है 4। अब क्या करें? एक 6 है और एक 4 है, दोनों को सेम क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। आपको बताते हैं, देखिए A रेशियो B
इज इक्वल टू 5/6। अगर हम 6 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, तो 6 2 जा कितना आ जाएगा 12। और B/C इज इक्वल टू 4/7। अगर हम 4 में 3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा 12। तो व्हाट विल बी आवर आंसर? 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। B/C is equal to 4 3 जा 12 and 7 3 जा 21। तो यहाँ पे भी B का वैल्यू कितना 12 और यहाँ पे भी B का वैल्यू कितना 12। तो व्हाट विल बी आवर आंसर? A/B/C is equal to 10। B का वैल्यू 12, B का वैल्यू 12, कोई भी एक बार लिख सकते हैं 12/21। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो दोनों आपस में इक्वल आएगा, तो देयर इज अ वेरी इजी रूल, अंडरस्टैंड इट। और अ डिफरेंट मेथड, A/B कितना था 5/6। B/C कितना था 4/7। आपको फाइंड करना था A/B/C। आपको फाइंड करना था A/B/C। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस ये काम करना है कि A/B इज इक्वल टू 5/6 और B/C का वैल्यू कितना है 4/7। क्या करना है, बस B का वैल्यू कितना है 6, यहाँ 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर B का वैल्यू कितना है 4, बस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम खत्म। यहाँ पर B का वैल्यू 6 है तो 6 को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर B का वैल्यू 4 है तो 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट विल यू गेट? 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। A/B, B/C will be equal to 6 4 जा 24 and 7 6 जा 42। आई होप इट इज क्लियर। B का वैल्यू कितना आया 24, यहाँ पे B का वैल्यू कितना है 24। क्या लिख देंगे? A/B/C इज इक्वल टू 20/24/42। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देख सकते हैं कि ये सारे नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं? 2 से। 2 10 जा 20। 2 के टेबल में 24 कितनी बार में 12 बार में, और 2 के टेबल में 42 कितनी बार में 21 बार में। तो व्हाट इज आवर आंसर? 10/12/21। और यहाँ पे भी क्या था आंसर? 10/12/21। आई होप इट इज क्लियर टू everyone. Let's take one more example of the same type. Example 6. A/B is equal to 3/4. B/C is equal to 5/7. Find A/B/C. तो लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू 3/4। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। B/C इज इक्वल टू 5/7। B का वैल्यू कितना है 4, B का वैल्यू कितना है 5। तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी समझ में नहीं आए तो 4 को कहाँ ले आना है राइट साइड, और यहाँ पर B का वैल्यू कितना है 5, इसको कहाँ ले आना है लेफ्ट साइड। व्हाट डू वी गेट? A/B इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। B/C is equal to 5 4 जा 20 and 7 4 जा 28। What do we get? A/B/C। A का वैल्यू कितना है 15, नो चेंजेस। B का वैल्यू कितना? यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, जो लेना है ले लीजिए 20, और C का वैल्यू कितना 28। तो A/B/C is equal to 15/20/28। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। और ये सिर्फ A, B और C ही नहीं, A, B, C, D आप कुछ भी बना सकते हैं। जितना लंबा टर्म रहे आप वो भी बना सकते हैं। बट दिस यू डोंट हैव टू स्टडी, बट स्टिल आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन एंड मेकिंग यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। A/B
इज इक्वल टू 2:3, B रेशियो C इज इक्वल टू 5:6, C रेशियो D इज इक्वल टू 10:11, फाइंड A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो D। हम लोग अभी तक तो ABC पढ़ रहे थे, लेकिन अब इसमें A, B, C और D आगे E, F, G, H जितना भी आए वो सब बना सकते हैं। A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D लिख लेते हैं। A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3, B रेशियो C इज इक्वल टू 5:6 और C रेशियो D इज इक्वल टू 10:11। अगर आप बारी बारी चले तब भी बना सकते हैं, और अगर ये मेथड सीख जाए तो आप एज अ प्रो आप एक बार में बना सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। B का वैल्यू कितना है 3, B का वैल्यू कितना है 5। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेम करने के लिए क्या करें, 5 को कहाँ लाए, यहाँ, और 3 को कहाँ भेज दें, यहाँ, राइट। इसको छोड़ दीजिए, लिमिट। What do we get? A ratio B equal to 5 2s are 10, 5 3s are 15. B ratio C is equal to 5 3s are 15 and 6 3s are 18. Clear? अब लिख दीजिए इधर से C ratio D is equal to 10:11. अब आप ध्यान से देखिए तो A रेशियो B रेशियो C तो आपको मिल गया, यहां से आपको A रेशियो B रेशियो C मिल गया, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के जैसा। तो A का वैल्यू कितना 10, B का वैल्यू कितना 15 और C का वैल्यू कितना 18। A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 10 रेशियो 15 रेशियो 18। अब आएगा मेरे पास C रेशियो D। C रेशियो D कितना है 10 रेशियो 11। अब क्या करें, यहाँ पर C का वैल्यू कितना है 18 और यहाँ पर C का वैल्यू कितना है 10, दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करें, A रेशियो B रेशियो C 10 रेशियो 15 रेशियो 18 और C रेशियो D इज इक्वल टू 10 रेशियो 11। बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, और अगर आप उतना लंबा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं और अगर आप सोच सकते हैं तो 18 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 90, और 10 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 90। व्हाट डू वी गेट, A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 10 5 जा 50, 15 5 जा 75, 18 5 जा 90, C रेशियो D इज इक्वल टू 10 9 जा 90, 11 9 जा 99। यहाँ पे C का वैल्यू कितना 90 और यहाँ पे भी C का वैल्यू कितना 90, दोनों सेम है। आप लिख सकते हैं A रेशियो B रेशियो C रेशियो D 50, B का वैल्यू कितना 75, C का वैल्यू कितना 90, दोनों जगह सेम, और D का वैल्यू कितना 99। सो दिस इज योर आंसर, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, और अगर आप ऐसा ही क्वेश्चंस को और समझना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट में, जो बच्चे जितना ज्यादा कमेंट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए या जो भी क्वेश्चंस हो आपके पास, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ लेट्स move on to one more question, and that will be a last question of today's class. This will be a short video, a last question of today's video session, because I have taught you all the questions, important questions yesterday. एक ये टाइप का क्वेश्चन बचा था जो मैंने आपको आज बता दिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, that is most important, question number 8। क्वेश्चन है x रेशियो y इज इक्वल टू 3 रेशियो 4, फाइंड, आपको फाइंड करना है 3x प्लस 4y रेशियो 5x प्लस 6y। x रेशियो y का
कितना दिया हुआ है 3:4। आपको फाइंड करना है 3x + 4y और 5x + 6y। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/y = 3:4, तो लिख सकते हैं x/y = 3/4। इसका मतलब ये होता है कि x = 3 and y = 4, but in ratio we don't know that whether they are equal or not. So what we will write let x = 3 के कोई भी एक नंबर k मान लेते हैं। क्यों x और k मानते हैं, आपको कल बताए थे। यहाँ पर x है इसलिए x नहीं मान सकते हैं, कोई अलग वेरिएबल मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको कल बताया था कि एक बच्चे के पास 20 चॉकलेट और दूसरे बच्चे के पास 25 चॉकलेट, तो इन दोनों का रेशियो 5×4 = 20 और 5×5 = 25। ये 4:5 रेशियो है। ये नहीं बता रहा है कि दोनों के पास एक्चुअल चॉकलेट्स कितने हैं। ये 4:5 इज अ रेशियो, इट इज नॉट saying us about the actual number of chocolate. The same condition is here. We have x ratio, y is equal to 3:4. We don't know the actual quantity, so we will let x is equal to 3k and y is equal to 4k. y को कितना मान लेंगे 4k, आपको मन है p q r कुछ ही मानिए, और x is equal to 3k। क्या लिख सकते हैं, फाइंड क्या करना है, 3x + 4y डिवाइडेड बाई 5x + 6y। 3 × x, x की जगह पर कितना 3k, प्लस 4y, 4 × y, y की जगह पर कितना 4k, डिवाइडेड बाई 5x, 5 × x की जगह पर कितना 3k, प्लस 6, y की जगह पर कितना 4k। सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 जा 9k, प्लस 4 4 जा 16k, डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15k, प्लस 6 4 जा 24k। क्या मिलेगा, 16 + 9 20, 16 + 9 is equal to 25k, डिवाइडेड बाई 15 + 24, 5 + 4 9 and 2 + 1 3, 39k। तो क्या k से k कैंसिल हो जाएगा, 25k डिवाइडेड बाई 39k, k से k कैंसिल, तो व्हाट वी गेट 25/39। इसको क्या लिख सकते हैं, 25:39। दिस इज आवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज end of our today's video session and particularly the chapter ratio. In the next class we will be studying proportion, which is once again a very interesting topic. So do watch the complete video for better understanding of the chapter ratio and solve all the questions in your copy. And whatever the questions you get on WhatsApp, kindly solve it and send it to me, as this is very important for your attendance. So everyone, thank you all. Have a good day.